Now, once again, welcome to Hack Coding YouTube channel. And in this video, let's continue one more series, one more part of the arrays. And in this, we are going to start with algorithms. Basically, algorithms are the certain structures which we use in our C programming to make our life very easy. And the first thing which come up with is the bubble sort. So basically, bubble sort is what? Bubble sort is a type of an algorithm. What it is called? It is called an algorithm. And which type of it is called? Which type of algorithm it is? It is type of a sorting algorithm. What it is? It is a sorting algorithm. Okay. So bubble sort is the simplest sorting algorithm that works and repeatedly swapping the adjacent element as if they are in the wrong order. So basically इसका मतलब यही होता है to arrange our array in increasing or decreasing order. Okay, guys, just bear with my handwriting because I'm not able to write because I'm writing with my marker. Okay, so as we can see, the bubble sort helps our array to use basically to arrange in increasing order, use in increasing order or in the decreasing order. Okay, so for this we as it already have told you that we are going to use a swapping of the numbers. What swapping of the number? So if you do not know how to swap two numbers, just go and see the previous video. And I have already covered as in the previous slide because swapping is going to help in this case. Okay. So now suppose this is the array which as the user has given you to sort an array. The first one is 5, the second one is 3, the third one is, sorry, the index 0 is 5, the index 1 is 3, the index 2 is 8, index 3 is 4, and index 4 is 6. Okay. So now the first thing what you will do, you will compare the first two number. What you will do, you will compare the first number 5 and 3. In this case, I am going to arrange in ascending order. Ascending order means छोटे से बड़ा. Okay, and I will also show you how to do descending order. So is 5 greater than 3? Is 5 greater than 3? Yes. So just swap the number. So what you have to do, you have to just swap the number. You have to bring 3 here and you have to pass the 5 here. मतलब 3 को आपको 5 की जगह लाना है, 5 को 3 की जगह लाना है, जो हमने ऑलरेडी स्वैपिंग में किया है, राइट? नाउ दिस इज द स्टेप 1, मतलब पहला लूप खत्म. जब हमारा पहला लूप खत्म हो जाएगा, नाउ कम्स द सेकेंड लूप. सेकेंड लूप में क्या करना है, अगले दो नंबर को कंपेयर करना है. जब हमने अगले दो नंबर को कंपेयर किया, इज 5 ग्रेटर देन 8, यहाँ पे 8 5 से बड़ा तो नहीं है, तो देन व्हाट वी विल डू, वी विल लीव इट एज इट इज. हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको क्या बोलते हैं, चेंज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 8 से छोटा है, राइट? जब जब कोई नंबर बड़ा होगा इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे क्या था, 5 बड़ा था 3 से, तभी हमने स्वैप किया. लेकिन यहाँ पे 5 जो है वो 8 से छोटा है, तो हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे. सो कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड एंड डू नॉट स्वैप. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ग्रेटर देन दैट. बट अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, क्या अगर यही डिसेंडिंग होता तो हम स्वैप करते. आई विल शो यू दैट, नो प्रॉब्लम. बस अब यहाँ पे पहले असेंडिंग ऑर्डर देख लो आप लोग. नाउ coming to the third part, what it is comparing. Now this these two index are covered. Okay, now write what it has to do. It will do 8 and 4. अब वो 8 और 4 को कंपेयर करेगा. क्या 8 और 4 बड़ा है? हाँ, बड़ा है. क्या 8 और 4, 8 4 से बड़ा है, तो जस्ट उसको स्वैप कर देगा. क्या कर देगा? स्वैप कर देगा, राइट? नाउ अगेन इट विल कंपेयर 8 एंड 6. अभी अगेन 6 क्या है, इससे छोटा है, तो इसको इधर ला देगा. एग्जैक्टली, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बेसिकली. एक मिनट. So यहाँ पे 6 will come and here 8 will come. So what we got, 3 5 4 6 8. So first loop में क्या हुआ, फर्स्ट लूप जब हमारा पूरा रन हो जाएगा, तो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, जो नंबर मेरा 8 था, जो मेरा फर्स्ट नंबर जो 8 था, दैट हैज रीच टू द लास्ट लास्ट पॉइंटर. मतलब जो मेरा पहला नंबर था, जो मतलब मेरा जो पहला ग्रेटेस्ट नंबर था, इट हैज रीच टू द लास्ट इंडेक्स. मतलब पहले लूप से हमें ये मिल गया. फिर जब आप सेकंड लूप रन करोगे, तो जो सेकंड नंबर होगा दैट इज 6, तो 6 विल कम हेयर. जो थर्ड नंबर है वो मेरा फिफ्थ है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा. तो ऐसे ही ये हमारा जो है बेसिकली सॉर्टिंग ऑफ द एरे काम करता है. दिस वाज द ड्राई रन, बट लेट्स गो बिफोर जंपिंग टू द प्रोग्राम ना. आई विल शो यू द ड्राई रन ऑल्सो. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज टू लूप्स. क्यू टू लूप्स यूज करेंगे फॉर आई और फॉर जे. क्यू बिकॉज हमें आई की भी वैल्यू चाहिए और जे की भी वैल्यू चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज टू एरेज. ओके, सो डू नॉट वरी हाउ टू यूज दैट, आई विल शो यू. ओके, वेट अ मिनट. You have to uh, basically understand it very carefully. Okay, अभी देखो. अभी सबसे पहले मेरा नंबर है 8 है, 7 है, 4 है, 6 है एंड 3 है, राइट? सबसे पहले मेरा फॉर लूप क्या बोल रहा है,
सबसे पहले क्या बोला है, फॉर लूप मेरा बोला है, राइट। तो यहाँ पे आप देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली मैं कोड लिखूंगा, देन यू विल नॉट अंडरस्टूड व्हाई व्हाट आई एम टेलिंग। इसको एकदम ध्यान से समझना गाइस। जस्ट just sit here, sit concentrately and understand this. You do not have to jump out, you have, do not have to fast forward my video, because this is very 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 important. अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन मीडियन, हाउ टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस नंबर। वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज फॉर मीडियन यू ऑल्सो नो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द ऑर्डर, राइट। सो ये ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। लेंथ, लेंथ क्या बोला, आई इज ग्रेटर देन लेंथ, मतलब इसकी इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4 5। इंडेक्स की बात नहीं कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है। तो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, इंडेक्स एंड लेंथ। अगर इंडेक्स मेरे एरे की अगर 4 है, अगर इंडेक्स मेरी 4 है तो उसकी लेंथ +1 होगी। क्या होगी, लेंथ मेरी +1 होगी। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता रखा है। अगर यहाँ पे इंडेक्स 4 है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 4 है, बट इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंडाइस एंड लेंथ। सो आई इज ग्रेटर देन लेंथ, मतलब लेंथ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेंथ की वैल्यू यहाँ पे 5 है। क्या है, 5 है। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ओके। नाउ आई प्लस प्लस ये अभी छोड़ दो, क्योंकि ये जब ये वाली लूप अल्टरेट हो जाएगी तब करेगा। अब इसके अंदर भी एक अलग सा फॉर लूप है, राइट, ये वाला फॉर लूप। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे आपको फोकस करना है, ओके। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू क्या असाइन करने को बोल रहा है, 0। यहाँ पे 0 असाइन करने को बोला था, तो यहाँ पे मैंने 0 आई हैव असाइन। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, इंट जे वैल्यू शुड बी i+1। जे की वैल्यू क्या असाइन करने को बोल रहा है, i+1। हमने फॉर लूप पहले भी देख रखा है। जे की वैल्यू क्या बोल रहा है, i+1, मतलब जे की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, मुझे 1 देनी पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया। इस जे लेस देन लेंथ, यहाँ भी लेंथ की 5 वैल्यू होगी ना, तो क्या 1 5 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, तो हाँ ये वाली सारी चीजें क्या होगी, मेरी एग्जीक्यूट होंगी। ये वाली सारी चीजें मेरी एग्जीक्यूट होंगी। कैसी होंगी, अब देखते हैं। सबसे पहले तो एक टेम्प वेरिएबल लिया है, जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेम्प वेरिएबल, ओके। यहाँ पे टेम्प वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वो क्या चेक कर रहा है, इफ कंडीशन चेक कर रहा है। इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे। एरे ऑफ आई क्या है, मतलब एरे ऑफ 0। आई की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, 0। क्यों, क्योंकि अभी मेरा आई की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। तो एरे ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरे ऑफ 0 मेरा हो गया 8। क्या हो गया, 8। और एरे ऑफ जे क्या हो गया, यहाँ ग्रेटर देन साइन था तो मैं यहाँ ग्रेटर देन साइन लिख रहा हूँ। एरे ऑफ जे क्या, एरे ऑफ जे मतलब 1, राइट। तो एरे ऑफ 1 की बात कर रहा है ना वो, मतलब जे की वैल्यू तो अभी 1 चल रही है, तो एरे ऑफ 1। तो एरे ऑफ 1 क्या है मेरा, 7 है। क्या है, 7। अच्छा ये बताओ, इज 8 ग्रेटर देन 7, कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। माई कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब ये चीज स्वैप करेगा कि नहीं करेगा। ये जो तीन लाइन है ना, ये ऑलरेडी आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियो। ये ऑलरेडी क्या है, ये आपका स्वैपिंग ऑफ द नंबर्स है, राइट। तो अरे यार व्हाट हैपेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट मिस्टेक, 0 1, यहाँ पे 5 लिखा था मैंने, यहाँ पे भी 5 लिखा था। और यहाँ पे क्या पहला कंडीशन क्या था, 8 ग्रेटर देन 7, राइट। तो नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर स्वैपिंग ऑफ द नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा है, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, एरे ऑफ वाई वैल्यू इज 8। तो टेम्प में मेरा क्या साइन हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्प में मेरा क्या हो जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज इट इज नॉट अलाउइंग मी। टेम्प में मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नाउ एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे क्या है, एरे ऑफ जे इज 7, राइट। तो यहाँ पे जो एरे ऑफ आई को क्या मिल जाएगा, मेरा 7 मिल जाएगा। तो मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, मेरी 7 हो गई। एरे ऑफ आई मतलब मेरी जो 0 पे वैल्यू है वो रिप्लेस किससे हो गई, 7 से हो गई। इज दिस क्लियर। जो एरे ऑफ 0 है वो मेरा क्या हो गया, 7 हो गया। नाउ टेम्प की वैल्यू क्या थी, टेम्प की वैल्यू मैंने यहाँ पे 8 लिखी थी, राइट। टेम्प की वैल्यू तो हमें 8 मिल गई थी ना, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू देखो 8 मिल गई है। तो जो टेम्प की वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी, एरे ऑफ जे को असाइन हो जाएगी। एरे ऑफ जे क्या मतलब, एरे ऑफ 1। तो 7 की जगह क्या आ गया, मेरा 8 आ गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर को स्वैप कर दिया ना। तो दिस लॉजिक इज फॉर स्वैपिंग ओनली, मतलब टेम्परेचर को पहले, टेम्प को पहले हमने, तो ये मतलब मेरा बेसिकली हमने स्वैप कर दिया दो नंबर को। इज दिस क्लियर। ये इंक्रीमेंट होने के बाद, एक मिनट, एक मिनट, वेट वेट वेट, ये थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं इसको अच्छे से नहीं समझाया ना तो नेक्स्ट वीडियो विल गो फ्रॉम योर अबव योर हेड, ओके। सो अभी बताता हूँ मैं। नाउ सॉरी सॉरी सॉरी, पॉइंटर ऑप्शन इन कलर, ओके, ये तो 5 था। अच्छा देखो, तो बाकी जो है ना, 8 7 8 4,
सिक्स और थ्री, ये एज इट इज रहा क्योंकि इसको तो हमने टच भी नहीं किया ना, हमने सिर्फ पहले दो को टच किया, राइट। अब देखो यहाँ पे जब पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो मेरी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट। पहले मेरा इनर लूप रन करेगा, पहले मेरा क्या करेगा, इनर लूप रन करेगा, फिर मेरा बाहर वाले लूप को मैं रन करूंगा, राइट। अभी देखो, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, मेरी जे की वैल्यू मेरी +1 हो गई, मतलब जे की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 2 हो गई, क्या हो गई, जे की वैल्यू मेरी क्या हो गई, जे की वैल्यू तो मेरी 2 हो गई ना, क्यों, क्योंकि मैंने जे को क्या किया, प्लस प्लस कर दिया, राइट। अभी देखो, जब मैंने जे को प्लस प्लस किया तो यहाँ पे जे, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस, सो बेसिकली अगर देखें तो अगर हम क्या बोलते हैं, जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, राइट। इज 2 लेस देन 5, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि नहीं करेगा, इज 2 लेस देन 5, हाँ यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगेन वो इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। अभी एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई इज तो जीरो ओनली, बट एरे ऑफ जे क्या है, 2 है, तो जीरो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, या सो अभी किसको कंपेयर करेंगे, जीरो और टू को कंपेयर करेंगे, किसको करेंगे, जीरो और टू को कंपेयर करेंगे, राइट। जीरो और टू को कंपेयर करेंगे, तो जीरो और टू को कंपेयर करने से क्या होगा कि ये वाला नंबर अगर छोटा हुआ तो ये स्वैप हो जाएगा, राइट। ये वाला जो नंबर है ये एक दूसरे से स्वैप हो जाएगा क्योंकि सेवन जो है वो फोर से बड़ा है, तो बेसिकली यहाँ पे सेवन इज ग्रेटर देन फोर, तो मतलब ये कंडीशन तो हो रही है, तो फोर कहाँ चला गया, इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर, एट और सेवन, सिक्स एंड थ्री। इज दिस क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखो, ये अब ये इतना लूप, मेरा दूसरा लूप रन हो गया, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आएगा, आई विल गारंटी कि मतलब आपको मैं ये करके ही भेजूंगा, ये मैं आपको करके भेजूंगा। अभी देखो, अब जो आई की जे की वैल्यू 2 है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, मेरे को फालतू चीजें पहले मिटा देना, नहीं तो अदरवाइज अदरवाइज आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आएगा। गिव मी अ मिनट। ओके, व्हाई इट इज नॉट इरेजिंग, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके, पॉइंटर ऑप्शन इन कलर, अच्छा अभी देखते हैं। यहाँ पे अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, जे की वैल्यू क्या हो गई, 3, क्योंकि जब ये वाला लूप इंक्रीमेंट हो जाता है तो ये जे प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करता है, राइट। अब देखो, टेम की वैल्यू अगेन जीरो कर रहे हैं, ये एक इनिशियल कंडीशन बार बार टेम की वैल्यू जीरो कर दे ताकि हम कोई वो गार्बेज वैल्यू ना ले ले, जब ताकि वो स्वैपिंग ना हो, और ये चीज मैं बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये स्वैपिंग का ही लॉजिक है, राइट। अब देखो, अब एरे ऑफ वैल्यू क्या है, जीरो है, आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, बट जे की वैल्यू तो 3 हो गई ना, z की वैल्यू तो 3 हो गई, तो एरे ऑफ जीरो विल बी चेकिंग विद द एरे ऑफ 3, तो एरे ऑफ जीरो क्या है, अभी हमारा जो है ना, अब इसको देखना है, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा सब हो गया है ना। अब देखो, एरे ऑफ जीरो क्या है, 4 है, और एरे ऑफ 3 क्या है, एरे ऑफ 3 6 है, मेरा क्या है, 6 है, तो क्या इस 4 ग्रेटर देन 6, क्या फोर सिक्स से बड़ा है, नहीं है, फोर क्या सिक्स से बड़ा है, नहीं है, तो दिस थ्री स्टेटमेंट विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड, दिस थ्री स्टेटमेंट विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड, हम इसको फिर स्वैप नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसे ही रहने देंगे, ओके। नाउ अब थ्री के बाद क्या हो जाएगा, मेरा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मिनट, ये मिटा दो ना। अब देखो, अब जो मेरी पॉइंटर ऑप्शन इन कलर, आई सॉरी फॉर द गाइस फॉर मेसिंग मी अप, बिकॉज अब देखो, अब जो जे की वैल्यू है ना वो 4 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, लेकिन आई की वैल्यू तो अभी भी जीरो है ना, आई की वैल्यू तो अभी भी जीरो है, क्यों, क्योंकि अभी हम इनर लूप ही रन कर, अभी तो हम बाहर पे गए नहीं, राइट। अब देखो, अब जब इसको कर लिया, अब क्या होगा, अब जो होगा ना, फोर इज लेस, एरे ऑफ फोर, सॉरी सॉरी, एरे ऑफ जीरो और एरे ऑफ फोर कंपेयर होगा, तो एरे ऑफ जीरो तो ये है और एरे ऑफ फोर क्या है, मेरा 3 है, राइट। तो क्या फोर ग्रेटर देन थ्री, हाँ फोर ग्रेटर देन थ्री है, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, मेरे स्वैप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, क्योंकि फोर ग्रेटर देन थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो बाकी ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और तुम्हें पता ही है कि हाउ टू स्वैप, बेसिकली हाउ टू स्वैप द नंबर, राइट। सो दिस विल बी स्वैप्ड, राइट। सो दिस विल बी स्वैप्ड एंड ओके, सो दिस विल बी स्वैप्ड, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, अ, उसके बाद हमें फाइनल आउटपुट क्या मिल जाएगा, थ्री, ये वाले दो नंबर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बाकी नंबर तो वैसे के वैसे ही हैं, तो 3, 8, 7, 6, 4, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। देखो, तो अभी अभी अब जब आई की वैल्यू 5 होगी, अब जो 5 की वैल्यू, अब 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राइट। 5 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, ये वाला फॉर लूप का स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट मेरे एग्जीक्यूट हो गए, अब जाके वो फिर से, अब जाके वो बाहर वाली लूप रन करेगा, कौन सी लूप करेगा, रन करेगा, बाहर वाली लूप रन करेगा, इतनी इतना समझ में आ गया। अब देखो, जब बाहर
मतलब मेरा एक एक जे का साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। माई वन जे साइकिल इज एब्सोल्युटली कंप्लीटेड। ओके, नाउ इट विल गो टू द आई लूप। अब बात करते हैं इससे हुआ क्या। इससे ये हुआ, जो मेरा सबसे छोटा नंबर था, जो मेरा सबसे छोटा नंबर था दैट वाज 3, वो कहाँ पे आ गया? सबसे पहले आ गया। कहाँ आ गया? सबसे पहले आ गया। इतना समझ में आ गया? मतलब जो एरे में मेरा जो सबसे छोटा नंबर था, जब मैंने एक रूप रन कर दिया तो सबसे पहले आ गया। इज इज क्लियर? ओके, अभी मैं यहाँ पे एक एक लिख लेता हूँ, एंड बिकॉज यहाँ पे ये आप याद रखना, 38764। अभी हमें क्या मिल रहा है? 38764, राइट? 38764, 38764, और आई की वैल्यू क्या हो गई है? 1 हो गई अभी। तो बस इतना याद रखना, क्योंकि आई एम गोइंग टू इरेज दिस। 38764। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या था? 38764, राइट? हमें पिछले वाले लूप से क्या मिला था? हमें पिछले वाले लूप से मिला था 3, 8, 7, 6 और 4। मतलब इसको तो अभी हमें कंसिडर नहीं करना, ये तो हमारा इनिशियल एरे। ओके, और आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी, राइट? क्योंकि जीरो से कट के क्या हो गया था? 1 हो गया था, क्योंकि मेरा पहला लूप हो गया था, पहला लूप मेरा रन हो गया था। नाउ कमिंग टू द अगेन। अब इज आई ग्रेटर देन 5? हाँ है। तो फिर से वो अंदर वाली लूप को रन करेगा। तो अब अंदर वाली जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 1 2। मतलब 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया, राइट? तो मतलब अभी आपको समझ में आ रहा है? मतलब अब जो हम कर रहे हैं वो हम पहले वाले नंबर को स्किप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहले वाला नंबर ऑलरेडी अपने जगह पे पहुंच चुका है। ओके, सो नाउ इज 2 ग्रेटर देन 5? क्या 2 5 से, मतलब जो भी है, इस 5 के 5 बड़ा है, तो हाँ ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो नाउ इट विल अगेन एग्जीक्यूट। अभी एरे ऑफ आई क्या है? मतलब एरे ऑफ 1 क्या है? क्योंकि आई की वैल्यू तो अभी 1 चल रही है, राइट? आई की वैल्यू क्या चल रही है? 1 चल रही है। तो हमें 1, ये वाला, और किसको चेक करना है? 2 वाले को चेक करना है। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू तो 2 है। जे की वैल्यू तो यहाँ पे 2 चल रही है ना। आप लोग यहाँ पे ध्यान देखो, मेरे पॉइंटर को देखो, जे की वैल्यू तो 2 चल रही है। और 1 और 2 को चेक करेंगे तो फिर से स्टेटमेंट क्या आएगा? 8 > 7। क्या ये मतलब ये तो बड़ा है ना, ये नंबर बड़ा है, तो क्या हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे? हाँ, एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू स्वैप द नंबर। ओके, सो जस्ट आफ्टर स्वैपिंग ये अपने प्लेस चेंज कर देंगे। बाकी नंबर तो वैसे के वैसे ही रहे, राइट? सो अभी देखो इन कलर। अभी देखो, उसके बाद पहला लूप रन करने के बाद यहाँ पे आया 3, फिर आया 7, फिर आया 8, उसके बाद 6, फिर 4। इज दिस क्लियर? नाउ अगेन जे वैल्यू विल नाउ कम टू 3। जे वैल्यू विल नाउ कम टू 3। तो अब मेरा कौन सा होगा? 1 और 3 एग्जीक्यूट होगा। 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। 1 और 3 को कंपेयर किया तो क्या आएगा? ऊपर देखो, 7 > 6। हाँ, एब्सोल्युटली ये भी मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखो ना, इफ स्टेटमेंट देखो, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो अगेन ये दोनों अपने एक दूसरे को क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। तो 3, 6, 8, 7 और 4, बाकी नंबर को मैं टच नहीं कर रहा हूं, बस बाकी दो नंबर को स्वैप कर रहा हूं, राइट? अब देखो अगेन, 3 की वैल्यू के बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, राइट? तो अब हम वन वन वाले को और 4 वाले को चेक करेंगे। तो अगेन अगेन मेरा अगर देखूं तो 6 इज ग्रेटर देन 4। मेरा 6 4 से बड़ा आ रहा है, तो अब मैं फिर से इसको स्वैप कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3, 4, 8, 7, 6। इज दिस क्लियर? अब जे की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। क्या हो गई? जे की वैल्यू 5 हो गई, तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। तो कंडीशन ब्रेक होगा तो बाहर वाला लूप रन करने के बाद तो कहाँ पे आएगा? अंदर वाले, मतलब अंदर वाला लूप लूप रन करने के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा? बाहर वाले लूप पे हो जाएगा। तो मतलब आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखो, जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर था, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर वाज 4, तो क्या वो 4 अपनी जगह पे पहुंच गया? क्या वो 4 अपने जगह पे पहुंच गया? पहुंच गया ना? ओके, तो अभी आपको ये सीक्वेंस याद रखना। अभी हमें कौन सा नंबर मिल गया? 3, 4, 8, 7, 6। हमें क्या मिल गया? पॉइंटर ऑप्शन 3, 4, 8, 7, 6। मतलब अगर हम देखें, जब आई की वैल्यू 0 थी तो 3 वाला नंबर यहाँ पे आ गया, राइट? जब आई की वैल्यू 1 हुई तो जो 4 वाला नंबर है वो सेकंड प्लेस पे आ गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को? इतना समझ में आया कि नहीं आया? तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्या था? 3, 4, 8, 7, 6। ओके, नाउ आई वैल्यू इज 0 1। आई वैल्यू तो 0 1 तो कट गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई है। तो आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक 3, क्योंकि 2 + 1। तो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की वैल्यू 2 + 1 3 होगी, राइट? तो
अब किसको किसको चेक करना है यहाँ पे 5, लेंथ तो हमेशा 5 ही रहेगा, ओके। अब किसको किसको चेक करना है, एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3। एरे ऑफ 2 ये है और एरे ऑफ 3 ये है, राइट। एरे ऑफ 2 ये है, ये आप देख सकते हो ऊपर, एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3 यहाँ पे है। तो 8 और 7 बड़े हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 3 4 और बाकी वैसे का वैसे रहेगा। अगेन अगेन जो जे की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 4 लेस देन 5। अब ये किसको किसको चेक करेगा, इस 7 को और 6 को चेक करेगा। किसको करेगा, 7 और 6 को। अगेन ये बड़ा है, तो अगेन वो स्वैप कर देगा, 3 4 6 8 7। इज दिस क्लियर? अब समझ में आया। अब मेरी जे की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, बड़ा छोटा तो है नहीं, तो अगेन ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो अब वो फिर से बाहर वाले लूप पे जंप कर जाएगा, तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या 3। अब देखो, जब आई की वैल्यू 3 हुई, तो मेरा जो थर्ड नंबर था 6, वो अपनी जगह पे पहुंच गया। आई होप इसी तरह आई की वैल्यू जब 4 होगी, जब 4 पूरा रन हो जाएगा, तो 7 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट द नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज 3 4 6 7 8। सो दिस वाज हाउ माय बेसिकली माय बबल सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क्स। इस तरीके से हमारा जो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है वो वर्क करता है, एंड इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। अब देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बस इतना करना है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए बस साइन चेंज कर देना है, दैट आई विल शो यू जस्ट इन अ वाइल, ओके। एंड सॉरी गाइस, दिस वीडियो इज गेटिंग लिटिल बिट लॉन्ग, बट दैट इज नॉट माय फॉल्ट। अगर मैं सही से नहीं समझाऊंगा, तो यू विल बी ओनली द फर्स्ट पीपल हु आर गोइंग टू डिसलाइक माय वीडियोस। सो जस्ट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम आल्सो, and I am trying my best to make you understand, okay. So now coming to the program, so first one, we are going to take an array from the user, okay। int array of I'm going to take a 15 size मैं declare कर दूंगा 15, okay। int I comma j, okay, for the two loops, right। then again I'll be requiring a temp variable int temp, right। so ये temp variable मुझे चाहिए। now printf enter the number of terms, कितने number of terms डाल रहे हो, right। so enter the number of terms, and I am going to store this value in scanf percent control z percent d comma implicit length, okay। Okay, percent d and comma implicit length, and this I'll be storing the value in length, okay। कि कितना, मतलब आप 10 नंबर, ये साइज तो मैं 100 यहाँ पे 100 कर सकता हूँ, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बट एरे की साइज मैं 100 कर सकता हूँ, बट यूजर के हिसाब से चल रहा है ना। व्हाट यूजर विल बी राइटिंग 20 नंबर्स और 30 नंबर, दैट इज अप टू यार यूजर वाला थिंग ना। सो नाउ scanf percent d implicit length, now coming to the next part, printf, okay, not printf, let me run a for loop for I is equal to 0 and I greater than length, and I remember here I'm not writing the bubble sort logic, I'm just taking the value which I've already taught you in the previous video, okay। so now printf uh, enter the enter the array परसेंट डी, ओके। एंड इसकी जगह मैं आई की वैल्यू ले रहा हूँ, i+1 कर दो या आई कर दो, बात तो बराबर ही है, ओके। एंड इसके बाद मेरे को स्कैनफ भी करना है, यहीं पे मैं स्कैनफ कर रहा हूँ, परसेंट डी कॉमा implicit array of I। रिमेंबर यहाँ पे आप i+1 नहीं करोगे, अगर i+1 करोगे तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट, क्योंकि i की वैल्यू 0 है। यहाँ पे i+1 करोगे तो यहाँ पे मैं टर्म्स के लिए i+1 कर रहा हूँ, बट इंडेक्स के लिए मैं i यूज कर रहा हूँ, राइट। अगर आप i+1 करोगे तो इट विल थ्रो यू एन एरर, ओके, आपको वो एरर थ्रो करेगा, ओके। उसके बाद जब भी आप ये लिखोगे, ये आपके स्कैन कर लेगा। उसके बाद एक एक नंबर, एक प्रिंटफ स्टेट करता हूँ मैं, नंबर द नंबर, ओके, द एरेज बिफोर सॉर्टिंग इज, मैं क्योंकि जो भी मेरा जो सॉर्टेड एरे है उसको मैं एक बार प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस एंड उसके बाद मैं करता हूँ, उसके बाद मुझे प्रिंट कराने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप रन करना पड़ेगा, राइट। तो आई एम जस्ट कॉपिंग पेस्ट द ऊपर वाला थिंग, एंड इधर मैं स्कैनफ की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं स्कैनफ हटा दूंगा। और यहाँ पे परसेंट एंटर द एरे की भी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा दूंगा। परसेंट डी की जगह मैं यहाँ पे ओके स्लैश टी यूज करूंगा, ताकि टैब मेरा बना रहे। और i+1 की जगह मैं लग दूंगा एरे ऑफ आई, ठीक है। तो मेरा फॉर लूप रन करके उसको मेरे को प्रिंट करके दे देगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, बिफोर राइटिंग द सॉर्टिंग प्रोग्राम, जस्ट मैं इसको एक बार ड्राई रन कर देता हूँ।
इसको मैं ड्राई रन कर देता हूँ ताकि आई आई डू नॉट गेट, एक आपको बार बार कर देना चाहिए। देखो यहाँ कोई रन किया तो आई गॉट सो मेनी एरर्स। What it is telling, length is undeclared. Why it is length declared? Length. Okay, okay. Semicolon is missing. Now if I'll run, then again I am getting error. What it is saying? Okay, expected a, it was expecting a semicolon here. Again it was expecting semicolon here. What I am doing here? Okay, so now finally I got enter the number of terms. Suppose I want to take five inputs. So one, then 31, then 213 and 232, right? So the array before sorting is 1 1 32 213 232, right? अभी हमने sort नहीं किया, हमने just as a random value डाल रखी है। Now logics come for the sorting array जो मैंने आपको अभी समझाया था। So guys, I'm not again going to explain you, I'm just going to straight away write the code for int for I is equal to 0, I is greater than length, comma I plus plus. Okay, so inside this also one more for loop will be there, but before that we have to initialize that temp is equal to 0. Okay, now इसके अंदर फिर से एक loop run करेगी for I, for j is equal to I plus 1, क्योंकि हमें I plus 1 करना है, क्योंकि हमें हम सेम नंबर को तो नहीं करेंगे ना, ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। सो यू जस्ट गो एंड यू जस्ट सी माई वीडियो अगेन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। j is length and j plus plus. Okay, now इतना हो गया। Oh, okay. So now comes the swapping part. Okay, wait a minute. Wait a minute. Yeah. So now it looks good, and the sorting part now it will come j is greater than one. Yeah. Okay. Now, if I'll run if array of I is greater than array of j, अगर ये statement होती है तो मैं क्या करूँगा? मैं I'm just going to swap the two numbers. Okay. So temp में पहले मैं store करूँगा array of I। ये भाई ये already I have already taught you in the previous videos, like basically how to swap numbers. So this is the same logic, swapping the two numbers. I'm not going to tell you again. Array of j is equal to temp. Okay, so I guess this works fine. And after this, when, oh, what happened? Yeah, what happened? Yeah, now it's fine. So after the my arrays are sorted, I'm just going to print my arrays again to just check whether my arrays are clear or not. The arrays after sorting sorting in ascending order. Okay, I'm going to sort in ascending order, right? So now let me run the program, and if I see any error is there, no, the error is not there. So I'm going with six terms. Okay, so the array of one is I'll be taking 5, the second one is 2, the second one is minus 1, yeah, and the third one is 54, and yeah, it is 98. What happened? Array of 6, I have to give 12. Okay, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Oh, wait a minute. Something happened. Okay. After this, I have to press a slash and wait a minute. Um, okay, let me run again. Wait a minute. Some network problem is there from my end. Okay, so now it has been got. Yeah. So now I'm going to five terms and 12, 10, 15, 18, 32. Okay, so now you can see the the array before sorting is 12, 10, 15, 18, and 31. But after sorting in the ascending order, we got 10, 12, 15, 18, and 31. You can see that my array in the ascending order is very correctly. It is very correct. Okay. So just you try with the negative numbers. My compiler is giving me an error with negative number, but देना नहीं चाहिए. I don't know why it is giving, but it's okay. The logic and the code is absolutely correct. एकदम genuine तरीका है करने का. Okay. So now
ये तो आप लोगों ने देख लिया. नाउ इफ यू वांट टू डिक्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जस्ट यू हैव टू चेंज द ऑपरेटर. रिमेंबर, जस्ट यू हैव टू चेंज द ऑपरेटर इन लाइन नंबर 13. यू हैव टू डू दिस. ओके, ये वाला ऑपरेटर बस कर देना तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा. ओके, सो जस्ट लेट मी चेक विद दैट ऑल्सो. डिसेंडिंग, DACIDING. What is this descending? Okay, now if I'll run it. So enter the number of terms. I'll go with 10 terms. Okay, this time. So 10, 3, 40, 44, 54, 31, 98, 21, 45, 1, 2. So any number you just check with random. I'm taking any random number. ये मैंने कोई, अब देखो, the arrays before sorting is 10, 3, 4, 54. ये तो मेरा अनसॉर्टेड है था. बट आफ्टर डिसेंडिंग ऑर्डर यू कैन सी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लाइक दिस. एट लास्ट आई गॉट 3. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड मतलब ये आप लोगों को समझ में आया. एंड मतलब बबल सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फ्रॉम द एरे पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई होप you guys liked it, and if you liked it just press the like button and just give me a beautiful comment there. And in the next video, अगर next video में again I'll be writing the same code again, but उसमें से थोड़ा सा modification होगा because that is for the median. Okay, so till then keep learning, keep watching and keep hack coding. जय हिंद.